Till that point, this gentleman has a question, a very good question he has. Genuine question he asked. Very nice, brilliant bete. Till इतना टाइम पढ़ाते हुए हो गया, इतना अच्छा क्वेश्चन हमें किसी ने पूछा ही नहीं है. The ones, even those who belong to the commerce. It's a brilliant question he has asked. See the what question is. Yesterday we discussed about prepaid expenses. Please try to understand. Prepaid expense. I said prepaid expenses are those expenses which are paid in advance. Suppose this building is on a rent. If we look at the income generated by this business, that is, we earn fee from you people. And what are the expenses? Expenses on miscellaneous expenditures, छोटे मोटे खर्चे जो है markers के, marker की ink, and the fee they have to pay to the teachers, and the rent of the building. Rent of the, this rent is an expense. If it is paid after every month, reth go, expense go due, core pay. You lose the liability, narudi asset, asset, it's an expense. You have paid it, it's an expense. In your profit and loss account, you will show incomes and you will show expenses. अगर नहीं ये पे कोर किहीन, ये क्या चाहिए? Liability. तेल क्या चाहिए? मैं गई शेन रतन पे ही करना रेंट, मुस्लिमन काल पगह करा, ये क्या गई मैं पेट? Liability. Because outstanding expense is a liability. समझाओ ना ये? आज में तुलिन liability, तम ब्रोट पुरसेम सवाल. यम छ ज word करमेतन use. I have used two words. One is prepaid expense. One is outstanding expense. Prepaid expense is that expense which you have paid in advance. अभी ये due हुआ, मैंने साल की रेंट पहले ही दे के रखी है. वंकमदारनस औकाफ वल. It is my current asset. Wait, I said it is my current asset. Now he asked a brilliant question, and this is my liability. This is my liability. We call it current liability. वो तो हम आ जाएंगे ना liabilities पे, अभी आप जैसे याद रखिए, it's a current liability. Now इतना you agree with me, this is an asset and this is a liability. Now he said beautiful thing. He said, you said in the beginning that assets are those resources which can be converted into cash. How can you convert this into cash? Yes, we can convert this into cash. See how. अगर ये हमें बोलेंगे now vacate out from this building, we will tell them first give us the rent which is due with you. But in normal course, this doesn't happen. अगर हमने एडवांस में अपने मुलाजिमों को सैलरी दी, क्या हम उनसे वो मांग सकते हैं? फिर हम जब रेशियो एनालिसिस पे आते हैं, इनको हम तब फिर करंट एसेट्स में से एक्सक्लूड करते हैं. बट इन अकाउंटिंग वी कंसिडर देम एज एन करंट asset. We will imagine if they will throw us out from the building, they will say we no longer want to continue with them, and we tell them हमने तो साल की रेंट पे की है, पहले हमें वो वापस कर दो. या suppose I will tell you like this. I am teaching here, but it's a genuine example. I am teaching here. They have to pay me for the entire course. They paid me in the advance. Now I am their current asset because I owe money to them. I owe money. They have paid me in advance. Bhuvani mane message dur gasa. I won't come here. What will they first tell me? You repay us the money. Go na cash as must convert. You got it? So easy, thick and brilliant. वो लास्ट पे आऊंगा आपके उस क्वेश्चन को मैं बाद में जवाब दूंगा. कल आई वॉज लुकिंग एट द वीडियो जो इन्होंने पोस्ट किया था. किसी बच्चे ने, एनोनिमस कोई भी, लिखा था हमने बात की थी एम्प्लॉई एसेट होते, बोला ना हमने एक दिन, कोई मैंने बोला था अंग्रेजी में जब हम बोलते हैं human resource are the assets of the organization. God both. But in accounting, we do not realize them as the definition academics kind net pet chapums. Asset is stiman vana, but agar asset ko वैसे देखेंगे, asset has a monetary value, चुना.
तम दिस ना एग्जाम्पल बह कित वन यमिस 17,000 करोड़ वैल्यू तो यमिस 15,000 करोड़ वैल्यू हेका बह वन कैन आई शो देम इन माय बैलेंस शीट यह हाफ नॉलेज इज डेंजरस तुलुक नेट पे छपोक तन यह एसेट ह्यूमन रिसोर्स वी कंसिडर एसेट्स बट इन वी से इन ऑर्डर टू बूस्ट देयर मोरल और अब एक नई अकाउंटिंग आई है इनटू एग्जिस्टेंस दैट्स कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मगर वो हमारे सिलेबस में है नहीं मगर अगर आपको वहां पे सवाल आएगा which among the following is not an asset as per the accounting लिखा होगा plant and machinery sorry building it's an asset furniture and fixture it's an asset human resource we never say human resource an asset like we say them as an asset कैसे ह्यूमन रिसोर्स का मैं वैल्यू निकालूं भाई मैं कैसे उनको बैलेंस शीट में दिखाऊं एज वैल्यू दिखा है कब है ये पॉसिबल नाउ टुडे let's look at the liabilities let's look at the liabilities वो याद रखिएगा हमें वो पढ़ना है fictitious assets है ना उस पे हम कल आएंगे आज पहले हमें liabilities का पार्ट उठाना है क्योंकि I'll be connecting them with तो आई आवा गुबर you got it brilliant you should ask me always like this current asset चाहिए because if I tell them I will no longer come they have paid me in advance I have to repay them back clear cha now please now let's today look at the liabilities liabilities are the obligations which the business owes to the outsiders कर्ज liability means karza liability are the obligations which you owe to the outsiders when I talk about liability even in our personal life leave the business aside even beta in our personal life we have lot of liabilities get due suppose हमने कार लाई है we have purchased an asset this gentleman has enough cash he went to the gem cash or the Nexa he loves the Baleno car he took the ownership of the Baleno car and paid 100% cash he has no liability he acquired an asset but liability has zero because he purchased it on cash from his own resources go initial liability zero when this gentleman Amir out here he went to Hyundai showroom he loves Hyundai i20 car but he only has money to pay the down payment car 10 लाख की है he paid a down payment of 2 lakh rupees 8 लाख इसने फाइनेंस करवाया बैंक से within 3 years he is going to repay this loan 3 साल के लिए बेटा जी ये इसकी क्या है liability because he has to repay this in the coming it is due on him even in our lives we take credit from someone we buy something on credit and then till we don't repay every penny of it it is a liability now same is the case with businesses I said you in today's dynamic environment wherein everything is not possible to run everything on cash a business has to avail credit either from the suppliers or he has to avail the bank loan from the financial institutions so that is why you will always see liabilities in the balance sheet of a business हर कुछ बिजनेस लायबिलिटी आसान ही आसान कुछ हदस तान वन लायबिलिटीजन तस्म इन एसेट्सन कस्म लायबिलिटी मान कर्जदारी ऑब्लिगेशन विच इज ड्यू ऑन यू अख लायबिलिटी गई करंट लायबिलिटी ब्या गई नॉन करंट लायबिलिटी यथ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वन लायबिलिटी टेंजिबल तो इनटेंजिबल मतलब कह वन लायबिलिटी ना टेंजिबल ना
यह तिथ कन वना मगर लायबिलिटी कूरी हमेशा दारा टू सम आउटसाइडर, टू ए पर्सन, टू ए कूरी गड बुझवार। बेटा जी ध्यान दीजिएगा, ये बात मेरी याद रखिएगा। लायबिलिटी यू ऑलवेज ओ टू अ पर्सन, यू ऑलवेज ओ टू अ, वो पर्सन नेचुरल भी हो सकता है, वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है। हम लक्ष्मीकांत का ही केस लेंगे जो हमारा बिजनेसमैन है। उसने बेटे स्टॉक लाया ना, योकुन गुबुर, व्हाट इज योर नेम सर, कुन जाए कंफ्यूजन व्हाट बूज लक्ष्मीनाथ ना सोन बिजनेसमैन, तम ओन कर्जस पे स्टॉक, तम कमिस हेत सह दुबई किस सप्लायरस। अगर वो दुबई का सप्लायर एक सोल प्रोपराइटर है तो वो नेचुरल पर्सन है, अगर वो कोई कंपनी है तो वो कौन सा है, आर्टिफिशियल पर्सन। मैं वन लायबिलिटी यू ओ टू सम आउटसाइडर, दैट आउटसाइडर कैन बी अ natural person or an artificial person. Artificial person means some company, some firm, some entity. Suppose हमें बाहर किसी फर्नीचर हाउस है, एल का फर्नीचर हाउस, बहुत बड़ा फर्नीचर हाउस है, हमने उनसे उधार पे फर्नीचर लिया, या सैमसंग से एलसीडीज उधार पे लिए, तो हम किसको ओ करते हैं, सैमसंग कंपनी को। दैट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। Natural person go Zahur, Amir, Shahkar. We are all natural persons who are created by God, who have been created by nature. They are all natural persons. Artificial are which are created by way of law by us. Go liability show obviously darana sankes pos. Now, gobri ye liability chana repay karin wapas. Chana businesses gobra wapas karun ye pos. क्योंकि लायबिलिटी तो इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि यह पैसा क्या करना है, वापस। वी हैव टू रिपे दिस बैक टू दोज टू होम वी ओ दिस मनी। यह तिमन वापस करें। वन ज किस्म। यू हैव बेटा जी नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, and you have current liabilities. Current liabilities. Clear hai beta? Now when let us first look at current liabilities, then let us look at non current liabilities. Gobra, current assets kya hai asan? Current assets are those assets which are to be which are held या which are to be converted into cash within 1 year, या which are held by a business up to 1 year. कोशिश चीम करा इस वरियस मज गम कन्वर्ट कैशस मज गसे। पत हर कह हेक न गसित पत क्या करो, मजबूर स्टॉक जन जरूरी मगर everybody wishes that this stock should get converted into cash. Everybody wishes that the debtors should pay me in cash back. क्या साइकिल अकिस फर्म पकनावन, बह वन हाउ, आई विल शो यू दैट साइकिल टिल दे फिनिश द अजान। क्या गोसू तुम असल पे याद रोजन, ये पे क्वेश्चन तक का रॉकेट साइंस क्वेश्चंस, बेसिक इन्हीं लेक्चर से क्वेश्चन निकलेंगे। मेरा एक एक लेक्चर याद रखा करो, एक एक वर्ड, इसी पे मैं एक एक वर्ड पे फोकस करता हूँ। फिर पिछले साल के पेपर किया करो, अब देखो आपको कितने आएंगे करने। क्लास ही मगर विद टाइम यू विल डू थिंग्स। सबसे पहले सपोज बेटी वी हैव कैश इन आवर हैंड, आई हैव विद द कैश आई एम परचेजिंग रॉ मटीरियल, आई एम परचेजिंग अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, कुछ बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग, this raw material I am converting into work in progress या semi finished good. क्लियर है बेटी? This semi finished good I am converting into a finished good. Either I am directly selling it and back converting it into cash. The cycle. येम दो ये cycle stop go, business go तती stop go ना। अगर बुचुस कनान वज़मिस पेट, बुचुस कनान I am selling on credit. तेल कह मज गि गोड कन्वर्ट डेटर्स मज गि ना,
गस ना कह चीज गस डायरेक्ट कैशस मज कन्वर्ट विच इज सोल्ड ऑन कैश, मगर यूजुअली क्या होगा अगर क्रेडिट पे ही सब बेच रहे हैं, होता है ना कोई बिजनेसमैन हु यूजुअली सेल्स ऑन क्रेडिट, गड क्या बनन फिनिश्ड गुड कमन करो ऑफर कस्टमरन, कस्टमर क्या बनन डेटर्स, सप्लायर क्रेडिटर्स, कस्टमर क्या बनन डेटर्स, दिस डेटर्स विल बी अगेन कन्वर्टेड इनटू कैश, वो येतन गस पत कैश पोजीशन ऐसे बढ़ी क्या along with profit गोस ना इन कैश, if I started here with 1 lakh पत ये नई सरी गस यून 1 lakh इथे कन वुचान at least 1 lakh गस यून, तेल रोजो इस ब्रेक इवनस पे, तेल रोजो इस break even point is that point wherein neither we have profit nor we have loss. आपको इकोनॉमिक्स टीचर बेहतरीन है, he will teach you that better than me. तो अब बात उठी इसीलिए मैंने आपको बोला break even point is that point wherein the firm has neither profit nor it has loss. Now let's look at current liabilities. Non-current liabilities और दो विशेष गोबरा गॉड बुझ इसन समझो रट थाओ न याद किया क्या फायदा, liabilities छे पाई these are बेटी obligations which are to be repaid back. गो बाया liability छे गोबरा वापस करनी we have to repay it back. If we don't pay liabilities back हमारा बिजनेस दिवालिया निकालेगा एंड देन आवर एसेट्स विल बी सोल्ड एंड देन अगर उससे भरपाई नहीं हुई, मैंने जो पहले दिन बोला हमें अपनी वाइफ का और मां का सोना भी पर्सनल एसेट्स, ब्रिलियंट अनलिमिटेड लायबिलिटी, सोल प्रोप्राइटर, ब्रिलियंट बेटे। अब भाई ये तो पता ही पता है दैट लायबिलिटीज आर टू बी रिपेड बैक, ए बिजनेस हैज टू रिपे बैक द लायबिलिटीज, ए बिजनेस छज नाउ टाइम पीरियड के हिसाब से इनको डिफरेंशिएट करते हैं। दोज लायबिलिटीज विच आर टू बी रिपेड बैक विद इन 1 year आर नोन एज करंट लायबिलिटीज, आर नोन एज current liabilities are those liabilities which are to be repaid back within 1 accounting year, within 1 year, and they are to be repaid out of the cash generated from the current assets. Quadrati tim kai mas karo repay which is common sense. God yeles current asset karo kah mas convert kuri var buz ये अच्छे से समझना, ये चीज ये कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा। मे हेत वजमिस पे माल सप्लायरन हेतुमज सप्लायरन कर हेक बह वापस दित येल बह माल कन पत दिन में डेटर्स कैश। गो क्रेडिटर इज माई करंट लायबिलिटी, डेटर इज माई करंट एसेट। व्हेन आई कन्वर्टेड फर्स्ट डेटर्स इनटू कैश, जो मुझे वहां से पैसा आया उसमें से मैंने किनको पैसा दिया, करंट लायबिलिटीज को। ये कॉन्सेप्ट मत और समझाना है, और मत समझाना है। ब्रिलियंट, वेरी गुड, आस्क एज मेनी टाइम्स एज यू कैन। आई सेड yesterday, I said current assets are those assets which are to be converted into cash, or this gentleman said brilliantly, which are held by a company or a sole proprietor for a limited period of time, say 1 year, and after 1 year you have to convert them into, within 1 year you have to convert them into cash. Go take was cash. तमि कैश सती कोशिश कम कर पे करंट लायबिलिटीज, अगर न तम गई पे सैनिस बिजनेस खसारस मज गई हालत। गो तेल कह फिक्सड एसेट नुन कनित या कैश अन वजमिस पे बे लायबिलिटी अन सो लायबिलिटी पूर कर। गो सन करंट एसेट गन ज्यादा आसिन देन आर करंट लायबिलिटीज। सह बुथ पर्न ये बह तुम वर्किंग कैपिटल पर्न, आर करंट एसेट शुड बी मोर देन आर वन अमिस बिजनेस असल शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजिशन। अख बैंक ये शॉर्ट टर्म लोन दिवान सह गोड चेक करान, गोबरा यम सातन मे कूर पगह, इसी बेटी की शादी करानी है मुझे, ये भले वहीं से भी कह दे मुझे बाबा आई लव दिस फलानी गाय, मगर बह वुचना गोड तमिस लड़के सिंद क्रेडेंशियल्स, यह मैच गसान इन टर्म्स ऑफ खानदान सत शराफत, इन टर्म्स ऑफ खानदान मैंने इसे शराफत, एजुकेशन अमिस सह, लाइवलीहुड क्या,
इथे कन बैंक ते वुछान लोन दिन विज अमिस कंपनी छा साख्त वापस ये लोन करनस तह मज टेस्ट करा वी कॉल दैट लिक्विडिटी पोजीशन वो हमें आगे देखनी है हाउ गुड इज देयर ability to convert current assets into cash so that they can pay their current liability. So these current liabilities are those liabilities which are to be repaid back within 1 year out of the cash generated from current assets. अगर अब करंट एसेट से उतना कैश जनरेट ही नहीं हुआ फिर हम मजबूर है ना कोई फिक्स्ड एसेट बेचने के लिए अन मे गोस यून करंट एसेट करंट लायबिलिटी माने 3 लाख रुपये तो गस मे करंट एसेट्सो मज यून 4-5 लाख रुपये रूल वना डबल गसन रूल वना वो तो हमें आगे पढ़ना है अभी नहीं आपको याद रखना उसको हम करंट रेशियो बोलते हैं वो तो आगे पढ़ेंगे हम इंशाअल्लाह वना कचा गन करंट एसेट्स टू रिपे बैक द करंट लायबिलिटीज You got it, Betty, clearly? So current liabilities are those liabilities which are to be repaid back, which are due within 1 year. So hikmat akhir ti asit, 15 doh ti asit, magar maximum 1 year. Let us now look at the list of current liabilities. रात पुछ मे कोर एक वारिया असल सवाल मे पूरे दोह सह पे दिमागस मज मे दुत तमिस असल जवाब तथ कह तम वोन खबर बच्ची पुछा शायद येम बच्ची किन लड़कन कंस पुछ मे पूरे याद ज बूझ कोरी वार बूझ सह वन ऐ बह करंट लायबिलिटीज मज ठीक गबर जहूर प्लीज बेटा प्लीज पानी मेरे लिए गरम ही लाना उससे ठीक हो जाता है गला मेरा ये अच्छे से हम समझेंगे ना लिस्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज उससे आपको अच्छे से समझ आएगा सैलरी अगर सो लायबिलिटी अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग सो लायबिलिटी सैलरी एक्सपेंस सो कोर पे सो रूजी लायबिलिटी युस चीज आउटस्टैंडिंग सह लायबिलिटी युस पे कोर सह रूद कर्ज थैंक यू जहूर गॉड ब्लेस यू बे मेहनत करू बे तुम पोर्मुत वारियन पोस्टन छू ना असल पे परू GK VK गर ये गाइडेंस जरूरी इन स्टैटिस्टिक्स टीचर वारिया असल मैथ पढ़ना आमिर सर बेहतरीन टीचर स्टैटिस्टिक्स ना जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट यमिस तथ तजो तथ इकोनॉमिक्स तहलील साहब पान सह बेहतरीन नफर बे सीजन नफर सह हेचनायो IAS वालन पर्नावान तुहज कथ तमिस दिल्ली मज धप धप की गई ना योर पर्नावने स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट कम कम बोरमुत हाँ तम बच्चे कर बाकी मा हेकन वारिया तथ एलिजिबल कहें तथ स्टैटिस्टिक्स तथ पर्जो इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स असल पे तथ वारिया असल चांस इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स बे बाकियन इथे कन अल्लाह ताला करो कामयाबी इंशाअल्लाह थोड़ा पान तो मेहनत कर ना सोन वन योत मैं बड़ा खुश हो गया आप लोग पूछते हैं बोलते हैं और आपके टीचर्स यहाँ बहुत अच्छे हैं मैं मत जान हक ना तम बट दे आर हाईली प्रोफेशनल इन सो नत यम हा ही बह तेल मतलब आई कम ओनली बिकॉज आई सॉ ए वेरी प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर हेयर इवन दे टेल मी कि सर बराबर पर्न यह कर हुत कन कर मतलब आई एम इवन आंसरेबल टू देम तो आप भी इज्जत ही हमारी रखिएगा क्या बह वनो तुम आई डिडंट नो देम स्वेर मतलब अल्लाह तालस पत वन ऑफ माई स्टूडेंट्स हैड रिकमेंडेड देम टू मी बह क्या कोर कंटिन्यू जस्ट बिकॉज आई फाउंड देम हाईली प्रोफेशनल हैड दे बीन अनप्रोफेशनल पगह कम सुन तुम तह वन तोर नफर आमुत तमें कोर पे ये बह गा ना यह मगर ओनली आई से दे आर हाईली प्रोफेशनल मतलब इवन आई एम आंसरेबल टू देम हाईली प्रोफेशनल दे आर यह हु इंस्टीट्यूशन ये आज खुलेम हर गली नुक्कड़ पे खुले हैं तम त लगित पर्न इन पर्न पाई दे आर हाईली प्रोफेशनल मतलब इन पाई बच्चस क्या पर्न कित क्या हाईली प्रोफेशनल मतलब इन बराबर मे कोशिश करान बह गोस टाइमस पे वातुन मतलब आंसरेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी ये कल को इंशाल्लाह यू आर इन बेटर हैंड्स वन पान मेहनत करें सह एंड यू कैन रिकमेंड अदर स्टूडेंट सह पत अकिस बच्चस ना वन सह गुरु दक्षिणा बच्चे क्या गुरु दक्षिणा दी
टीचरस यी की कर एग्जाम क्वालिफाई यह बड़ गुरु दक्षिणा बे कर बाकियन बच्चन अख मिल तिमन ति फायदा बे ऑब्वियसली टू द इंस्टीट्यूशन ये पगह इंस्टीट्यूशन ग्रो गसान पत बच्चे ते बनाने ना अस पोर्मुत अतन पगह तुम सन मतलब यू आर मिरर टुमारो जब आप इंशाल्लाह कल को क्वालिफाई करोगे और न क्वालिफाई करना यह कुन जाए वोथमुत यह कुन जाए वोथमुत अगर तुम युत यी बोजन तुम गोस युत युन बोजन बस ये FAA एग्जाम जून तुम यह 3-4 रेतन वुन बे वुन कह कह दोहरात अथ कर मगर यू शुड दिस शुड बी ऑलवेज इन योर माइंड सह तमिस वन दपान वो मूवी एक आई थी इंडिया में जिसमें वो ऋतिक रोशन था सुपर 30 सह क्या तिमन वन हर चीज में पढ़ाई देखो वही आपको भी देखना है हर चीज में GK देखना है साइंस मे साइंस अम खतर पर चीज़ा गस पाय आसनी मे यह पर्न सरस पर्न अतन यथा दिमो घर शामन बे नजर सरन मैथ की क्वेश्चन हई मे गोस असल पे तगन कॉन्सेप्टा गोस बह रटन सो टीचर्स आर बेस्ट बाकी मेहनत भी सब करते हैं मेरा भी देखो मैं भी अपने गले का ख्याल नहीं रखता हूँ ताकि यही कि आप लोगों को बेहतर मिले मतलब फॉर यू पीपल क्या ये इंस्टीट्यूशन ते रेपुटेशन यमन गस पगह कह कह वन दे हैव बिल्ड एन इमेज फॉर सो मेनी ईयर्स सो वी शुड कीप दैट इन कॉन्टैक्ट नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन व्हाट करंट लायबिलिटीज आर वुच कूरी वर्ड सैलरी अगर वर्ड सैलरी छोर अमुक मतलब गो अ पे कोर्मुत अ पे यह मा रूजी लायबिलिटी ये पे कोर यह रूदा कर्ज सपोज बैंक लोन कोड़मुत वरियुक असा कोर यह पे यह रूदा कर्ज युस चीज आउटस्टैंडिंग सु कर्ज वर्ड सैलरी लिखित छोर सैलरी इट इज एन एक्सपेंस इट इज एन यह क्या लायबिलिटी गोबरा ये कोर पे सैलरी पेड यह लायबिलिटी ना ये लिखित सैलरी आउटस्टैंडिंग सो लायबिलिटी क्या वन पे कर्म कहें क्लियर हाँ यस आउटस्टैंडिंग वेजेस यह ना मजूरो बिचारो मजूर कर्म मगर जल साजो वन तिमन पोसे दितमत यह ना आउटस्टैंडिंग वेजेस इट्स अ लायबिलिटी ऑन द बिजनेस अब सीखिएगा करंट लायबिलिटीज नॉन करंट तो इजी है जिसको करंट आएगा उसके जो बड़े वाले हैं जो 5 साल के लिए लोन लिया है 2 साल के लिए लोन लिया है वो तो है ना नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन व्हाट आर करंट लायबिलिटीज वन बाय वन सारी खुद गड हुत्युक अपोजिट हुत डेटर ये क्रेडिटर ये क्या क्रेडिटर कुस गो सप्लायर तमिस रिपे कर बैक सह मा दी 4 वर्यन खतर वजुम माल तमिस असली 10 दह 15 दह यमिस ये बिजनेस फैमिली हुंद यी 7 दह दिसा पोस 10 दह दिसा पोस 15 दह दिसा पोस ना इट डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस अगर 1 साल से ज्यादा क्रेडिटर वो कसा सो गई पत बदबापरी कर सो गई पत बदबा गई ना you have to repay अगर smooth conduct sound business you have to have a good yem saat asana good relation with the suppliers then they give you discounts है बाद में से बिच पारनु discounts gains and losses clear है बेटा very good इतने उस बच्चा का सा he is absent today अख बच्चो absent आपके साथ होते थे वो इधर बैठे होते थे absent है आज चलिए थाओ गोबरा नजर सबसे पहले बेटे क्या आएगा क्रेडिट इनमें करंट में वे तु इतना माना नहीं क्रेडिटर नहीं आप बोलो ना मैं कोई फरिश्ता हूं नहीं मुझसे भी गलतियां होंगी क्रेडिटर्स छज कुन जायस लिखित सन्ड्री क्रेडिटर्स गई शॉर्ट टर्म बामरुन छुने सन्ड्री डेटर्स बामरुन छुने इट्स वन एंड द सेम थिंग सन्ड्री तो शोक सब टीचर अक्सर सन्ड्री क्रेडिटर्स छोटे मोटे क्रेडिटर्स ठीक है दीज आर ऑल क्रेडिटर्स क्रेडिटर हो सन्ड्री क्रेडिटर हो क्लियर है बेटा क्लियर है बे क्या हुमिक अपोजिट हुत बिल्स रिसीवेबल ये क्या यस बिल्स क्योंकि बैंक आपके पास आएगा समझाऊंगा वापस बिल्स रिसीवेबल आज और एक बार समझाऊंगा दिस जेंटलमैन इज माई कस्टमर ही इज माई क्लाइंट थी गो कस्टमर He owes me 1 lakh rupees.
He owes me. He is my debtor. He is my chumna. I am his creditor. Very good. I said him, please repay me back. He said, I have promised. मैं इसको बोलता हूँ ओके रिटर्न में हम बिल एक बनाएंगे. मैं ये बिल लेके किसके पास जाता हूँ? बैंक के पास. बैंक मुझे इंस्टेंट पैसे देता है. फिर बैंक किसको मांगेगा पैसा? इसको. इस पर क्या है वो? लायबिलिटी. इस पर क्या है वो? क्लियर क्लियर क्लियर. सो bills payable, bills मे खतरस receivable because I converted that into cash. Yemis खतरस payable. Biu सर पत्थर. ये छपरा ये आप पढ़ते हैं? अच्छा अच्छा फाइन सॉरी रियली सॉरी आई थॉट यू आर द स्टूडेंट. बिल्स पेएबल. बिल्स पेएबल कब इस खतरे आमिर के लिए क्योंकि इसको बैंक का भी दरवाजा खटखटाएगा 2 महीने बाद आ जाओ पैसे दे दो. ये उसमें क्रेडिटर मगर वहां रूद नहीं म्यून क्रेडिटर क्या ये क्या बने हुए? बिल्स पेएबल. कम सुन बिल्स पेएबल बैंक सुन. आई शाबाश ब्रिलियंट. अब बैंक किससे पैसा मांगेगा? अपने टाइम पे. अमिस पान अकाउंट्सन मज फर्क. अमिस पाई क्या मैं बैंक हाई वन सो एज बिल इज पेएबल. क्लियर ओतान यह कर्जदार वन तह कर्जदार. ओतान मे कर पोस पे वन कमिस कर बैंकस. बाकी गो फर्क. लायबिलिटी लायबिलिटी. इथे कन अकाउंट्स पेएबल रिसीवेबल एसेट. अकाउंट्स पेएबल गई लायबिलिटी. क्लियर गोबरा. वेरी गुड. अकाउंट्स पेएबल. आई शाबाश वस गोबरा. प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस एसेट. आउटस्टैंड गोड बोज मे कुन दिमाग थन कन्फ्यूजन ग मगर तुह गोस नुन कह. मे क्या वोन रात प्रिपेयर्ड एक्सपेंस करंट एसेट. क्या मुल्कस ब्रो खर्च दुतमुत ना मगर तिमो वन सन काम कर्म. हेको तिम वन अगर तिम वन ना वो वला दियो कैश वापस. क्लियर छा. प्रिपेयर्ड एक्सपेंस अकोई चे याद थवन. थे पे अकोई चीज याद. प्रिपेयर्ड एक्सपेंस इज एन एसेट. इट्स अ करंट एसेट. नाउ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग इट्स अ लायबिलिटी. इट्स अ करंट लायबिलिटी. मैंने मुलाजिमों को उनकी सैलरी नहीं दी है. अगर सैलरी दी ना वो एसेट है ना वो लायबिलिटी है. दैट इज एन एक्सपेंस. दैट्स एन एक्सपेंस. सो जुतुम मेकर पन कर्जदारी कम. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग एवरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्लियर बेटी. कंफ्यूजन मत कोई. वंडरफुल. Every outstanding expense is a liability. Which liability? Current liability. Brilliant. You are understanding things fast. समझ आवा? अच्छा इनकम कत करो. रात क्या पोर? आउटस्टैंडिंग इनकम पोर ना. आउटस्टैंडिंग इनकम सो क्या करंट एसेट ना. आउटस्टैंडिंग इनकम या accrued income या accrued. That income which is due but we have not received that. We have not मान डेटर्स मे एग्जाम्पल दुत मे दोस तमें बोन रोटमुत अपार्टमेंट मगर तम दिस मे वन रेंट या कमीशन दुतमुत तम दुत कमीशन कहें. सो क्या एसेट क्या सो जीनम इनकम मगर रिसीव वन कर्म. हेको तिम सो मंगित. हेको तिम सो इथे कन अगर लिखित प्रिपेयर्ड इनकम. क्या लिखित प्रीपेड इनकम. यह क्या लायबिलिटी. क्या वुच क्या प्रिपेयर्ड इनकम. बजन मे दिस ना यमो मुल्कस ब्रो इनकम. यमो दिस ना मे एडवांसस मज फीस दुतुक ना. लायबिल कुस बनो यमन दारख ना बह वन सर्विसेज. आई ओ देम सर्विसेज. इथे कन तुह प्रिपेयर्ड इनकम. किसी ने आपको मे सो दोस ब्या काम कर मे सो दोस युस बन अपार्टमेंटस मज मे थोमुत. तम दिस मे वरीच अकी सात रेंट. वन कुसस दार तमिस सह कि आई ओ हिम. वी ओ हिम. क्लियर है ना बेटा. दैट बिकम्स माई करंट लायबिलिटी. फॉर हिम इट इज करंट एसेट. फॉर मी इट इज. समझ आवा कि बे समझाओ. और वेरी गुड ब्रिलियंट. गो ये क्या लिख मे गोड प्रिपेयर्ड इनकम. वार बूझ गोबर बह समझावत बे. प्रीपेड इनकम
ये याद, एवरी प्रिपेयर्ड इनकम इज व्हाट? करंट। अच्छा मुल्कस ब्रोह इनकम रटम मगर तिहज काम छन वन कर्म कहें। क्लियर? बह वन इत कन मे सह दोस बन थोमुत सह जिम चलावान, सह क्या मे दिवान? रेंट। सो रेंट क्या मे बना? इनकम। अगर न सह दिवान सो क्या आउटस्टैंडिंग, तम सात क्या तमे पे एसेट। तमे दिस मे वरी किस वरी रेंट अकी साथ, वह कुछ दार तमिस बह दार तमिस सर्विस तमिस दिन वरी किस वरिस। अगर बह तमिस दप अत कर वकेट मे क्या तमिस गो दिन पोस। ठीक है गोबरा? मगर वन रियल लाइफ मज रियलस मज इत चे वन बह पगह तथ पे बह प्रिपेयर्ड इनकम विपेयर्ड इनकम रिपे करने अमिक मा रिपे कर गो तेल बंद ग फुलफिल करने फुलफिल करने। इसमें आता है प्रिपेयर्ड इनकम और आते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या आता है? बैंक, बस समझाओ सह क्या गो, यावा समझ बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, bank overdraft is a short term loan, is a short term given by the bank to its valuable customers, to its मतलब यम असल कस्टमर आसन क्रेडिट स्टैंडिंग असल आसि, बैंक ओवरड्राफ्ट उन्हीं को दिया जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? क्रिस्टल क्लियर? बैंक ओवरड्राफ्ट किन के लिए लायबिलिटी है? हमारे लिए, बैंक के लिए नहीं। बैंक के लिए तो वो एसेट है, बैंक को तो हम ओव करते हैं। इसका में बिजनेस वना किसका हम बोलते हैं? बिजनेस के लिए क्या है वो? लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट फॉर ए बिजनेस इज अ, बट फॉर बैंक दैट इज एन एसेट। अच्छा मगर बिजनेस कत करान। ठीक ए ठीक सर? क्लियर कह कंफ्यूजन मज कुन जाय मज कंफ्यूजन? आप बेटे लिखिएगा जब होगा। ठीक है? डू टेल मी टुमारो देन यमिस कंफ्यूजन आज नमाज तो पगह थो तुम ना पन्ने जाय करियो ना तुम गर ब्रशअप क्वेश्चन थो गो प्रिजो मे सवाल बामरुन क्या वी हैव इनफ टाइम डोंट वरी। बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म यम रिपेश कर विद इन 1 ईयर, यम रिपेश कर विद इन 1 ईयर, शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स। बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन टू वैल्यूएबल कस्टमर्स। बैंक ओवरड्राफ्ट इज गिवन टू शॉर्ट टर्म मिसमैच उनको होता है, 15 दिन 20 दिन 1 महीने 2 महीने वही ओवरड्राफ्ट लेते हैं। दिस इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ टाइप ऑफ अ लोन, इट्स अ टाइप ऑफ अ लोन। क्लियर है? हाँ, जो जिनके बैंक की चर्निंग, अकाउंट चर्निंग बहुत अच्छी होती है। क्लियर है? हाँ, ट्रांजैक्शंस पे यस, वी हैव गुड चर्निंग, अकाउंट चर्निंग, वेरी गुड, ब्रिलियंट। शॉर्ट टर्म लोन्स। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? यू गॉट इट क्लियरली? व्हाट इज टाइम? 1:10। आज नमाज है तो आज इतना ही। ठीक है? टुडे वी हैव नमाज।